اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیریت سے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں پھر سے حدیث شریف کی باتیں ضرور سنیے گا، دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو میں شروع سے لے کر ان تک بنے رہیں۔ حضرت عبید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قابلہ تفاوت کے ایک شخص تھے۔ حضرت عبید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابلہ تفاوت کے ایک شخص تھے، ان کے راستے میں ہمارا قابلہ پڑتا تھا، ان کے راستے میں ہمارا قابلہ پڑتا تھا، وہ آتے جاتے ہوئے رہتے تھے، ہمارے قابلے سے ملتے اور ان کے حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں اپنی تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منور گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ میں اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منور گیا، وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا، وہاں میں اپنا سامان بیچا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے حالات لے کر اپنے قابلے والوں کو جا کر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا، اس گھر میں ایک عورت تھی، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئی اور وہ گھر میں 12 بکریاں اور اپنے ایک کپڑا بننے سے کاٹا جس سے وہ کپڑا بنا کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی، وہ مسلمان کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئی اور وہ گھر کی 12 بکریاں اور اپنے ایک کپڑا بنے ہوئے کانٹا سے جس سے وہ کپڑا بنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی۔ اس کی ایک بکری اور کانٹا گم ہو گیا، اس عورت کی ایک بکری اور ایک کانٹا گم ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رب، جو آدمی آپ کے راستے میں نکلے اس کی ہر طرح سے حفاظت کا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور میں آپ کے راستے میں گئی تھی اور میری غیر موجودگی میں میری بکریاں میں سے ایک بکری کا اور کپڑا بننے والا کانٹا گم ہو گیا۔ 12 بکری میں سے ایک بکری، ایک کپڑا کانٹا جو بن رہی تھی، وہ ایک کپڑے گم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو اپنی بکری اور کانٹے کے بارے میں قسم دیتی ہوں۔ وہ عورت نے کہہ رہی ہے، میں اپنے ایک بکری اور کانٹے کے کپڑے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس مل جائے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے واپس مل جائے تو میں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طفاوی آدمی کی بتانے لگی کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی سے دعا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قابری کے آدمی گئے تھے ملنے کے لیے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس عورت کی بیان اس سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بکری اور اس کی جیسی ایک اور بکری، اس کا کانٹا اور جیسا ایک اور کانٹا اللہ تعالیٰ کی غیبی خزانے سے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی خزانے سے اس کا کانٹا اور اس کا کپڑے اور بکری دونوں مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ہے وہ عورت، اگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ اس طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نہیں، مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
बल्कि मैं आपसे सुनकर इस तस्दीक करता हूँ कि मुझे आपकी बात पूरा यकीन है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काबिले वाले आदमी को फरमाया कि तुम जाकर उस औरत से पूछ लो, तो वो काबिले वाले आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, उस औरत से पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर यकीन है, आपने सही कहा। हज़रत उबादा बिन समीत रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद ज़रूर किया करो, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद ज़रूर किया करो, क्योंकि ये जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए रंज गम दूर फरमा देते हैं। एक रिवायत में यह इजाफा भी है कि अल्लाह ताला की राह में दूर और करीब जाकर जिहाद करो, और करीब और दूर वालों को अल्लाह ताला की हदों को कायम करो, और अल्लाह ताला के मामले में किसी की मुलामत का कुछ भी असर न लो। हज़रत अलकमा बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया जिसमें कुछ मुसलमान कौमें की तारीफ़ फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, यह क्या बात है कि कुछ कौमें अपने पड़ोसियों में न दीन की समझ पैदा करती है, न उनको दीन सिखाती है, न उनको नसीहत करती है, न उनको अच्छी बातों के हुक्म देती है, और न उनकी बुरी बातों से रोकती है। और ये क्या बात है, कुछ कौमें अपने पड़ोसियों से न इल्म सीखती है, न दीन की समझ हासिल करती है, और न नसीहत कबूल करती है। अल्लाह ताला की कसम, ये लोग अपने पड़ोसियों को इल्म सिखाएं, उनमें दीन की समझ पैदा करें, उनको नसीहत करें, उन्हें अच्छी बातों को हुक्म करें, बुरी बातों से रोकें। दूसरे लोग अपने पड़ोसी से दीन सीखें, उनसे दीन की समझ हासिल करें और उनकी नसीहत कबूल करें। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उन सबको दुनिया ही सख्त सज़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उन सबको दुनिया में सख्त सज़ा दूंगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए। लोगों में उसका चर्चा हुआ कि उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कौमें मुराद ली हैं। लोगों ने कहा, अशअरी कौम के लोग मुराद है, अशअरी कौम के लोग मुराद है, वह इल्म वाले हैं और उनके आसपास के देहाती दिन के नवाफिक है। यह खबर अशअरी लोगों को पहुंची तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अपने कुछ कौमों की तारीफ़ फरमाइए और हम पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, हमारा क्या कसूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, ये तो अपने लोग पड़ोसियों को इल्म सिखाए, उनको नसीहत करें, उनकी अच्छी बातों सिखाए, उनकी अच्छी बातों की हुक्म करें, बुरी बातों से मना करें। और ऐसे ही दूसरे लोगों को चाहिए कि वे अपने सबको दुनिया की सख्त पड़ोसियों को सीखें, उनसे नसीहत हासिल करें, दीन की समझ बूझ ले, वरना मैं उन सबको दुनिया में ही सख्त सजा दूंगा। अशअरी लोग ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम दूसरे को समझदार बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना वही हुक्म इरशाद फरमाया। उन्होंने तीसरा दफ़ा फिर यही अर्ज़ किया,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना वही हुक्म इरशाद फरमाया। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, 1 साल की मोहलत हमको दे दो, या रसूलल्लाह, हमें 1 साल की मोहलत दे दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पड़ोसियों को तालीम के लिए 1 साल की मोहलत देती, ताकि उनमें दीन की समझ पैदा करे, उन्हें सिखाए और उन्हें नसीहत करे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई कि बनी इसराइल में जो लोग काफिर थे उन पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत की गई थी, और यह लानत इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म से मुखालफत की और हद से निकल गए। जिस बुराई से वह मुब्तला था उससे एक दूसरे को मना नहीं करते थे। उनका यह काम वाकई बुरा था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी अतड़ियाँ निकल पड़ेगी। वह अतड़ियाँ के इर्द गिर्द इस तरह घूमेगा जैसे चक्की का गड्ढा चक्की के गिर्द घूमता है, यानी जैसे जानवर के आटे की चक्की चलाने के लिए चक्की के चारों तरफ घुमाया जाता, उसी तरह वह यह शख्स अपनी अतड़ियाँ की चारों तरफ घूमेगा। जहन्नम के लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाएंगे और उससे पूछेंगे, फलाने तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम अच्छी बातों को हुक्म नहीं करते थे और बुरी बातों से हमको नहीं रोकते थे? जवाब देगा, मैं तुमको अच्छी बातों का हुक्म करता था लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता था, और बुरी बातों से रोकता था लेकिन उन्हें क्या करता था, वह दूसरे के सिखाता था, मैं खुद अपना अमल नहीं करता था। अल्लाह ताला उसको दम जहन्नम में फेंक देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। ईमान जैसा करोगे आखिरत में तो वैसा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप अच्छा करें, यहाँ से लेकर आखिरत तक आपके अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ हाजिर रहूँगी। आप अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें, हमारे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।